9, 10 اور اس سے اوپر کی جتنی بھی کلاسز ہیں وہ ساری کی ساری کھول دی جائیں گی، اور بچے جو ہے وہ اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، پروفیشنل سکولز میں، ووکیشنل سکولز میں جانا شروع ہو جائیں گے۔ تو ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی طے کیا تھا کہ ایک ہفتے کے بعد ہم سچویشن کو ریویو کریں گے، اور ریویو کرنے کے بعد کلاس 6, 7, 8 کو 23 تاریخ سے اجازت دیں گے، اور اس کے بعد ایک اور ریویو کرنے کے بعد 30 تاریخ کو پرائمری سکول جو ہے ان کو بھی اجازت ہوگی کہ وہ بھی کھول دیے جائیں۔ تو اس سلسلے میں پچھلے ایک ہفتے سے بڑا کلوزلی ہم نے ہیلتھ سچویشن کو مانیٹر کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف ہمارے جو صوبائی اور وزراء تھے اور میں بھی، ہم اسکولوں میں گئے، اسکولوں کے انسپیکشنز کی، صوبوں نے اپنے اپنے طریقے بنائے اسکولوں کو وزٹ کرنے کے، اور کئی اسکول اس لیے بند کیے گئے کہ انہوں نے SOP کی، یعنی کہ جو شرائط رکھی گئی تھی جن کے تحت اسکولوں کو کھولا گیا، کہ ان پہ عمل نہیں کیا۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہاں بیماری پھیلی تھی، لیکن اس لیے کہ وہاں پہ عمل جو ہے وہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو شاید اس سے کچھ لوگوں نے یہ غلط تاثر لیا کہ شاید بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں تھی۔ بہت سارے اسکول جو تھے وہ اس لیے بند کیے گئے کہ وہ SOPs پہ عمل درآمد نہیں کر رہے تھے۔ لیکن جیسے ہم نے پروگرام بنایا تھا، آج صبح ہم نے ایک ریویو میٹنگ کی جس میں سارے صوبے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزراء، سیکرٹریز اور باقی کنسرنڈ لوگ شامل ہوئے۔ ہمارے ساتھ اس میں منسٹری آف ہیلتھ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جناب ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب اور ان کی ٹیم بھی شامل تھی، اور پھر دوبارہ ہم نے بغور جائزہ لیا ہیلتھ سچویشن کا، بغور جائزہ لیا انفیکشنز کا، ٹیسٹنگ کا، اور اس کے بعد اس کی تفصیلات ابھی آپ کو ڈاکٹر فیصل صاحب بتائیں گے۔ لیکن جب ہم نے ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ ہوا، اور سب نے صوبوں نے اپنی طرف سے یہ ہمیں بتایا کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کل سے کلاسز 6، 7، 8 جو ہیں وہ بھی اسکول میں آئیں گی، سوائے AJK کا ایک ضلع ہے راولہ کوٹ جہاں پہ کچھ پرابلم تھا، اس لیے وہ ابھی نہیں ہوگا، لیکن باقی ان ساری جگہ پہ جو طالب علم ہیں 6، 7، 8 کے اوریجنل ٹائم ٹیبل کے مطابق وہ اسکول جو ہے اس کو اٹینڈ کریں گے۔ سندھ نے فیصلہ کیا کہ وہ ابھی یہ نہیں کریں گے۔ کیوں یہ کیا؟ جو انفیکشن کے ریٹ ہے وہ تو تقریباً وہی ہیں، لیکن بہرحال ہماری تو خواہش تھی کہ مشترکہ فیصلہ سارے ملک کے لیے ہوتا، لیکن بہرحال انہوں نے کہا جی ہم ایک ہفتہ اور ریویو کریں گے۔ تو جن محرکات کی اور جن سٹیٹسٹکس کی بنیاد پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا، اس کے بارے میں اب ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو بتائیں۔ بہت شکریہ شفقت صاحب۔ سب سے پہلے میں تھوڑا یاد دہانی کراتا چلوں کہ جب یہ اسٹریٹجی بنائی گئی تھی کہ یہ تعلیمی ادارے کیسے کھلیں گے، تو اس کے 2-3 اہم جز تھے۔ ایک یہ کہ یہ بتدریج کھلیں گے، اور اس درجہ وار کھلنے کی جو شرائط ہوں گی وہ کچھ ایسی ہوں گی کہ ہم ہر ہفتے اس ہفتے کے اعداد و شمار دیکھیں گے، عمومی طور پہ سارے ملک کے اور ریجن وائز، اور پھر خصوصی طور پہ کچھ جو اسکولوں اور تعلیمی اداروں کے ارد گرد اسپیشل ٹیسٹنگ، سینٹینل ٹیسٹنگ، سروے ٹائپ ٹیسٹنگ ہو رہی تھی، ان کو بھی دیکھیں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ جو پہلا مرحلہ ہے اس کے کھلنے کے کوئی فوری اثرات منفی قسم کے سامنے تو نہیں آئے۔ اچھا، اب یہ تو تھی بیک گراؤنڈ۔ اب میں آپ کو تھوڑے سے اعداد و شمار شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو عمومی طور پہ ملک بھر میں ممکن ہے آپ یہ سلائیڈ دیکھ رہے ہوں اسکرین پہ، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو 14 ستمبر کا ہفتہ تھا
اس میں جو औसतन केसेस थे जो पॉजिटिव हो रहे थे मुल्क भर में वो 599 थे। और उसके बाद से जो हम सारे अदाद शुमार रोजाना की बेसिस पे देख रहे हैं वो तकरीबन इसी रेंज में चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे 21 सितंबर को 623 केस थे, 22 सितंबर को 582 केस थे। तो कहने का मकसद ये है कि जो टोटल तादाद केसेस की है मुल्क भर में, उसमें स्कूलों के खुलने के बाद इस पिछले एक हफ्ते के अंदर कोई ऐसी तब्दीली हमें महसूस नहीं हुई। उसके बाद एक और जो स्टेटिस्टिक है जिसको हम बहुत गौर से देखते हैं, जो परसेंट पॉजिटिविटी कहलाती है। ये मैं फिर याद कर रहा था चलूं कि जून में जब ये परसेंट पॉजिटिविटी हमारे यहाँ चल रही थी तो ये 22% के करीब भी गई, उससे भी ज्यादा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे चली आती रही। अगर इसको अब हम फोकस करें उस टाइम फ्रेम का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तो स्कूलों के खुलने से पहले जो 14 सितंबर का जो हफ्ता था उसमें इसकी शरह 1.89% थी और ये तकरीबन इसी रेंज में 2% से ज्यादा नीचे नीचे चल रही है 24 अगस्त से लेके अब तक। और गुज़िश्ता 2 दिनों की शरह भी आपको बता देता हूं, 21 सितंबर की 1.9 और 22 सितंबर की 1.61। तो मकसद इस नंबर को बताने का यह था कि पिछले एक हफ्ते में ना टोटल केसेस में हमें कोई ऐसी तब्दीली दिख रही है जिससे हम इस जो अगला फेज था, अगला मरहला था, उसको पोस्टपोन करने का कोई बेसिस रखें, ना ही जो शरह पॉजिटिविटी की है उसकी बेसिस पे। अच्छा, ये तो उमूमी पोजीशन है जो मुल्क भर की। एक चीज मैं और आपसे शेयर करता चलूं, क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया था कि हम स्कूल्स को भी और तालीमी इदारों को भी सारे मुल्क में सर्वे करेंगे और टेस्ट करेंगे। तो इस सिलसिले में कुल्ली तौर पे पब्लिक इंस्टीट्यूट्स में 74,000 से ज्यादा टेस्ट हुए और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में 19,000 के करीब, तकरीबन 20,000 के लगभग। अब इसकी मैं आपको थोड़ी तफसील भी बता देता हूं। मिसाल के तौर पे पंजाब में 32,000 टेस्ट हुए पब्लिक इंस्टीट्यूट्स में, जिसमें सिर्फ 35 पॉजिटिव थे। जो शरह थी पॉजिटिविटी की वो 0.12%। इसी तरह प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में 3,700 टेस्ट, जिनमें 0.55 पॉजिटिव, यानी ½ %। इसी तरह सिंध में 21,496 तकरीबन 21,500 टेस्ट हुए, जिसमें 96 टेस्ट पॉजिटिव थे और जो पॉजिटिविटी की शरह थी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में वो 0.76 थी। इसी तरह उनके जो प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स थे उसमें 9,500 टेस्ट हुए, उसमें से 54 पॉजिटिव थे और 0.88 पॉजिटिविटी थी। केपी में तकरीबन 6,000 टेस्ट हुए, 27 पब्लिक इंस्टीट्यूट्स में पॉजिटिव हुए, पॉजिटिविटी की शरह 1.7, और उनके जो प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट्स थे उनमें पॉजिटिविटी की शरह 0.86। बलूचिस्तान में जो पब्लिक इंस्टीट्यूट्स थे उसकी शरह 11.8 थी, लेकिन बाहर कैफ और प्राइवेट सेक्टर में उनकी टेस्टिंग कम थी क्योंकि वहां प्राइवेट सेक्टर कदरे इंस्टीट्यूशंस कम है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ओवरऑल सिचुएशन पे नजर रखते हुए फैसला यही किया है कि वो कल से 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लासेस शुरू कर रहे हैं। इसी तरह AJK में 2,600। वज़ीर तालीम शफकत महमूद और मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का फैसला किया गया था। 45 पॉजिटिव टेस्ट थे और शरह जो थी पॉजिटिविटी की वो 2.74 थी। ये सारी बारीकियां और अदाद शुमार आपको बताने का मकसद ये था कि आपके सामने वो स्टेटिस्टिक्स और शुमारियात वाजे रखी जाएं, जिसकी बेसिस पे हम ये रेकमेंड कर रहे हैं कि आप जो अगला मरहला था यानी फेज 2 जिसमें 6ठी, 7वीं और 8वीं के बच्चों ने स्कूल जाना था, उसको कल से अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया जाए। इस मौके का फायदा उठाते हुए सिर्फ एक चीज मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, वो ये कि हमें अमूमी तौर पे सारे मुल्क में जो हमारी जिम्मेदारी है इस फैलाव को रोकने के लिए, जिसमें बहुत ताल्लुक मास्क का इस्तेमाल है, खास तौर पे बंद जगहों में या जहां भीड़ हो, उसको प्लीज अडॉप्ट रखिए। स्कूलों में तो ये हो रहा है, उसकी कुछ बेहतर कंप्लायंस हमें दिख रही है और मेरी गुजारिश होगी वालिदैन से, बच्चों से भी और असातिज़ा से और स्कूल की इंतजामिया से कि इसकी कंप्लायंस, इसके ऊपर बाकायदगी से अमल किया जाए, चूंकि ये इस बीमारी के फैलाव को रोकने में हमारी बहुत अहम मदद करेगा। और उमूमी तौर पर सारे मुल्क के लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस मास्क के इस्तेमाल को ना छोड़ें, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में इससे हमारी बहुत बचत रहेगी। शुक्रिया। जैसे कि डॉक्टर फैसल साहब ने आपको बताया, अल्लाह ताला के फजलो करम से जो बीमारी की सूरत हाल है वो
थोड़ी भी हो तो वो तकलीफ दह होती है, लेकिन अगर आप उसको शुमारियात के हिसाब से देखें, स्टेटिस्टिकली देखें, तो बहुत कम शरह है बाकी ममालिक के मुकाबले में। और मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि हम जितने भी फैसले करते हैं वो हम स्टेटिस्टिक्स की बुनियाद पे, एविडेंस की बुनियाद पे करते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो सिफारिशात हैं उनके मुताबिक करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ये कहना भी ज़रूरी होगा कि कहीं कहीं कुछ लोग इस किस्म की बात कर रहे हैं कि जैसे कोई वबा में फिर इजाफा हो रहा है। अगर आप शुमारियात देखें, अगर स्टेटिस्टिक्स देखें, तो ऐसी कोई एविडेंस जो है वो नज़र नहीं आती। तो जो फैसला अब आपने किया है कि 6, 7, 8 जो है वो कल पुराने जो हमने टाइम टेबल दिया था उसके मुताबिक कल वो स्कूल में आएंगे, और फिर इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद हम दोबारा बैठ के रिव्यू करेंगे कि प्राइमरी का जो 30 तारीख का फैसला है उससे पहले एक और रिव्यू होगा, और इस सारे अरसे के दौरान हम सारे जो स्टेटिस्टिक्स हैं उन पे नजर रखेंगे। मैं यहाँ पे एक चीज और भी ज़िम्नन इशारा कर दूं कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में जुलाई के शुरू में एक फैसला हुआ था कि 15 जुलाई के बाद कोई भी अदारा अगर इम्तिहान लेना चाहता है तो उनको इम्तिहान लेने की इजाजत थी। और उसके बाद मुख्तलिफ अदारों ने इम्तिहान लिए और अदारे कुछ इम्तिहान ले रहे हैं, और अभी तो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी खुल रही हैं, तो कोई ऐसे हालात नहीं है कि किसी भी वजह से कोई इम्तिहानात को हम बतौर गवर्नमेंट रोकें। अगर कोई इम्तिहान लेना चाहता है तो वो ले सकता है। ये सवाबदीद उन अदारों की है जो इम्तिहान लेना चाहते हैं कि वो लेना चाहते हैं या नहीं। तो आखिर में मैं फिर गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं स्कूलों को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, सबको, असातिज़ा को, टीचर्स को, पेरेंट्स को फिर एक दफ़ा गुजारिश करूंगा कि आप सब तावन करें। बच्चे जो हैं वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग हो, डेंसिटी कम हो, तो जो भी SOPs शराइत रखी गई हैं उनके मुताबिक अमल किया जाए। हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं होती जब किसी तालीमी इदारे को बंद किया जाए, लेकिन बंद जब अगर कहीं नजर आए कि शराइत पे अमल नहीं हो रहा तो मजबूरी के तहत करना पड़ता है। लेकिन उम्मीद है कि आइंदा ये मौका जो है वो नहीं आएगा, और सारे स्कूल और बाकी कोशिश करेंगे कि SOPs पे अमल दरामद होता रहे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से कहा गया है कि 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात के तालिब इल्म कल से स्कूल जाएंगे और टाइम टेबल के मुताबिक क्लासेस का